Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will continue with our poem One World. So all of you please get ready with your literature book and open page number 125, chapter 13, One World. So this poem was written by Safdar Hashmi. Now see the first line of this poem. You know old Akbar, one time king. That means here the poet is saying, Safdar Hashmi the poet is saying that you know old Akbar. So here he is saying that you know about Akbar. You all know about Akbar, isn't it? You have read many stories related to Akbar in your history classes. So here the poet is saying that you know Akbar. He was the one time king. Now see the next line. He thought he knew most everything. That means here according to Akbar he thinks that he know everything about this world. So यहाँ पे ही रिप्रेजेंट अकबर. अकबर को ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है. Now see the next line. Cross his path at you he threw a torrent of words on how much he knew. That means here torrent means a strong fast flow of something. Torrent means strong fast flow of something. That means here Akbar whatever he knows he used to answer in rapid way. ओके सो यहाँ पे अकबर को कुछ भी पता होता है किसी भी चीज़ के बारे में देन उसका वो आंसर बहुत रैपिड वे में देते थे, बहुत जल्दी से सारी चीज़ें उसके बारे में बता देते थे. I have seen the whole wild world. You bet. That means here I have seen. That means here the Akbar is saying that I have seen the whole wild world. That means मैंने इस वर्ल्ड को पूरा अच्छे से देखा है. You bet. That means here Akbar is challenging, means he is betting that he has a great knowledge about this world. वो bet लगाते हैं कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में सारी जानकारी है, सारी नॉलेज है. The moon, the stars, sun and set, mountains, forests, rivers, streams, island, ocean, the waves that gleams, town and village, big and small, house and heart, I have seen them all. Here the meaning of streams means small river and gleams means a soft light that shines for short time. ऐसी कुछ सॉफ्ट लाइट्स जो होती हैं जो बहुत कम टाइम के लिए शाइन करती हैं. Heart means it is written in your book only the area of the floor around a fireplace in a house. So here the Akbar is saying that I have seen the moon. I have seen the moon. I have great knowledge about the moon, the stars, sun and set, mountains, forests, rivers, streams, island, oceans, the wave that gleams, town, village, big and small, everything, the house, the heart, I have seen them all. मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है. That means from this first stanza we can see that the Akbar was a great king but he was very proudy of his achievement. यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि जो अकबर जो किंग था वो बहुत प्राउडी था एंड उसे बहुत अपने ऊपर प्राउड था कि उसने सारी कुछ चीज़ें देख ली हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. Give me the people, give me the crowns. That means here the Akbar is saying that I have seen many rulers, I have seen many kings. मैंने बहुत ढेर सारे किंग्स को देखा, मैंने बहुत ढेर सारे रूलर्स को देखा उनको राजा बनते हुए. Now see the next line. Success and failures, up and downs. That means here the Akbar is saying that I have seen many things in my life. I have seen the success and failures, up and downs. That means यहाँ पे अकबर बोल रहे हैं कि मैंने अपने लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, जितने भी सक्सेस होते हैं, फेलियर होते हैं, सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देख ली हैं. Drums and cymbals, playing cards, theatre, entertainment, all of the arts. I have watched the wheel of politics turn. That means in the first two lines you can see that means the third line and the fourth line Akbar is talking about the art. वो आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं
कि जो ड्रम्स होते हैं एंड सिम्बल्स होते हैं, जो ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, थिएटर, इंटरटेनमेंट, सो ऑल ऑफ द आर्ट, जितने भी आर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अकबर ने देखी हैं. I have watched the wheel of politics turn. That means here the Akbar is saying that I have seen many issues. मैंने बहुत से इश्यूज देखे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी पॉलिटिक्स होते हैं किंगडम में, मैंने सारे कुछ देखे हैं. मीन्स पहले के टाइम में ऐसा होता है कि बहुत पॉलिटिक्स होती थी, अचानक से कभी कोई राजा बन जाता था, कभी कोई राजा बन जाता, किसी ने किसी को डिफीट कर दिया, देन वो राजा बन गया. सो अचानक से सारी चीज़ें होती हैं. सो उन्होंने बहुत से पॉलिटिक्स देखे हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, सेंट्स एंड सिनर्स. सेंट्स मीन्स जो साधु टाइप के जो पीपल होते हैं, गुड पीपल, एंड सिनर्स मीन्स जो बैड पीपल होते हैं, जो दूसरों के लिए गलत करते हैं. What is left to learn? That means here the Akbar is questioning that what is left to learn. That means he is saying that I have seen good people as well as I have seen the bad people in my life. Then what is left to learn? That means जब मैंने सारा कुछ देख लिया अपने लाइफ में, अप एंड डाउन्स देख लिए, जितने भी सक्सेस देख लिया, फेलियर्स देख लिए, आर्ट रिलेटेड चीज़ देख लिया, पॉलिटिक्स देख लिया, अच्छे लोग को भी देख लिया, बुरे लोगों को भी देख लिया, एंड अब क्या बचा है मुझे और चीज़ जानने के लिए. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, एज फार एज आई कैन सी ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू मी, किंग ऑफ द वर्ल्ड एम आई, से आई, दिस वन ट्रूथ nobody dares deny. Deny means refuse. That means here Akbar is saying that I can see far, means जितना कुछ मैं देख सकता हूँ. So मुझे ऐसा लगता है कि these all things belongs to me. जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें मुझे belong करती हैं. So I am the king of the world. That means मैं इस पूरे वर्ल्ड का मैं ही एक king हूँ. So this is the truth. What was the truth? That he was the king of the world. So यहाँ पे अकबर को फील होता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड के किंग हैं. And this is the truth. No one can deny. So this is the truth. So here the Akbar is saying that this is the truth that no one can deny that he is the king of whole world. So यहाँ पे उनकी बात को कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है कि वो इस वर्ल्ड के किंग हैं. सो उनको ये लगता है ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही रिफ्यूज़ कर सकता है. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, नाउ अकबर हैड अ मिनिस्टर, बीरबल वॉज हिज नेम. सो यू ऑल नो दैट अकबर वॉज हैविंग अ ग्रेट मिनिस्टर. सो हिज नेम वॉज बीरबल. स्लिम, स्लंडर, स्लाइटली बिल्ड. दैट यू ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लिम, मीन्स जो पतले होते हैं उनको आप स्लिम कहते हैं. एंड स्लंडर मीन्स थिन इन अट्रैक्टिव वे, मीन्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पतले होते हैं बट बहुत अट्रैक्टिव वे में पतले होते हैं. स्लाइटली बिल्ड, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ बीरबल. हम बीरबल के बारे में बात करें कि जो बीरबल की जो लुक, जो उनकी पर्सनालिटी थी एंड जो उनका लुक था वो कैसा था. ever ready to play the game. That means here Akbar was always ready to to clear any issues or solve any problem. So now I think that we all have heard about Birbal, isn't it? We have read many stories related to Birbal and Akbar in our history classes. So Akbar was a clever, you can say clever and sharp minister of अकबर. आप कह सकते हैं कि जो उनका मिनिस्टर था अकबर, वो बहुत क्लेवर था, बहुत इंटेलिजेंट था, एंड जो उसका माइंड था वो बहुत ज़्यादा शार्प था. एंड वो हमेशा रेडी था कि वो कभी भी अकबर की हेल्प करे किसी भी चीज़ से, चाहे वो रिलेटेड हो, सोशल कोई इश्यूज़ हो या पॉलिटिकल इश्यूज़ हो. सो अकबर मीन्स बीरबल वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अकबर. वो हमेशा रेडी रहते थे कि वो अकबर की हेल्प करें. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, he saw the bug his king had caught. That means here the bug means an illness. He was sharp, not one to miss. Pride it was he knew for sure. That made the Badshah speak like this. That means here Akbar saw the illness Akbar has
दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अकबर इलनेस, अकबर की इलनेस के बारे में बात करें। एंड उनकी इलनेस क्या थी, उनको कौन सी बीमारी थी, उनके प्राउड की, उनको हर चीज़ में बहुत प्राउड फील होता था, वो बहुत प्राउडी किंग थे। सो यहाँ पे उनकी इलनेस के बारे में बात हो रही है, जो अकबर को जो बीमारी थी, उनके जो प्राउडनेस थी उसके बारे में बात हो रही है कि बीरबल फाउंड दैट हिज किंग वॉज हैविंग अ इलनेस। यहाँ पे बीरबल फाइंड करते हैं कि जो उनके किंग थे अकबर, उनको इलनेस हो गई है, उनको बीमारी हो गई है प्राउडनेस की। ही वॉज शार्प नॉट वन टू मिस, दैट मीन्स ही वॉज वेरी शार्प। जो बीरबल थे वो बहुत शार्प थे, बहुत शार्प माइंड थे। एंड उन्होंने बहुत जल्दी से ही फाइंड आउट कर लिया कि अकबर को कौन सी बीमारी है। ओके, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ स्पीकिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे बीरबल बोल रहे हैं, उनको इतना अपने ऊपर घमंड हो गया, इतना ज़्यादा प्राउड हो गया है, इसीलिए वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। दैट ही इज़ सेइंग दैट द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। उनको ऐसा फील होता है कि सारा वर्ल्ड है वो उन्हीं का है। ही इज़ द किंग ऑफ दिस होल वर्ल्ड। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, वन डे अ स्ट्रोल किंग अकबर टुक। दैट मीन्स वन डे अ स्ट्रोल, स्ट्रोल मीन्स स्लो वॉक, स्लो वॉक जब आप करते हो दैट इज कॉल्ड। सो वन डे अकबर वॉज वॉकिंग, अकबर एक वॉक करते हैं बहुत स्लोली अक्रॉस द रैम्बलिंग पैलेस ग्राउंड। हियर द मीनिंग ऑफ रैम्बलिंग मीन्स एमलेस वॉक, मीन्स यहाँ पे अकबर एक दिन बहुत आराम से धीरे धीरे वॉक करते हैं अपने पैलेस ग्राउंड में, एंड विदाउट हैविंग एनी एम। जब आपके पास कोई एम नहीं रहता है कुछ भी करने को, कोई काम नहीं है करने को, देन सिंपली आप जस्ट अपने पैलेस ग्राउंड में वॉक कर रहे हैं। एंड राइट देयर इन द कोर्टयार्ड ट्रिप्ड, हियर द मीनिंग ऑफ ट्रिप्ड मीन्स टू कैच योर फूट ऑन समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग। दैट मीन्स जब आप वॉक करते हैं एंड अचानक से आप किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, आपके जो पैर हैं वो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ट्रिप्ड। कोर्टयार्ड मीन्स एरिया ऑफ ग्राउंड, जो आंगन होता है। सो ऑन समथिंग समवन दैट ही फाउंड, दैट मीन्स उनका जब वो वॉक करते हैं देन वो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, कोई चीज़ रहती या फिर कोई रहता है। देन ही फाउंड, red with anger, Akbar got he unleashed a mighty jab. Jab means a sudden hard hit with one's fist. And here the meaning of unleash means strong force. That means when Akbar found someone, जब अकबर ने देखा कि वहाँ कोई है, so he was very angry. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। And then गेट अप यू साधु, एंड देन वो बहुत गुस्से में बोलते हैं गेट अप यू साधु, कि आप यहाँ से उठो। अकबर श्रीक्ड, श्रीक मीन्स अकबर इज सेइंग दीज ऑल थिंग्स इन अ वेरी लाउड वॉइस, बहुत हाई वॉइस में जब आप बोलते हैं नॉइस करते हैं। श्रीक का मतलब है नॉइस इन हाई वॉइस, जब आप बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए जब आप बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड श्रीक्ड। गेट अप यू साधु अकबर, दैट मीन जब वो पैलेस ग्राउंड में वॉक करते हैं एंड देन वो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, एंड देन वो जब देखते हैं कि वहाँ एक कोई साधु रहता है, देन ही स्टार्टेड शाउटिंग, देन वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं गुस्से में। लिसन टू मी, डोंट गैप, गैप मीन्स टू टॉक कंटिन्यूसली अबाउट थिंग्स दैट आर अनइम्पॉर्टेंट। दैट मीन्स जब आप बहुत गुस्से में होते हैं देन अननेसेसरी थिंग्स आप बोलते हैं, कोई भी चीज़ें आप जस्ट बोलते रहते हो। सो सिमिलरली यहाँ जब अकबर ने देखा अपने कोर्टयार्ड में किसी को, साधु को देखा, देन उनको बहुत गुस्सा आ गया एंड देन वो अननेसेसरी चीज़ें उसको बोलने लगे साधु जी को। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, दिस कोर्टयार्ड दैट यू मेक योर बेड बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। दैट मीन्स हियर द अकबर इज सेइंग दैट दिस कोर्टयार्ड, दैट मीन्स ये जो कोर्टयार्ड है, ये जो आंगन है, जो ग्राउंड है, ये मेरा है। इस कोर्टयार्ड को जो अपना बेड बना के यहाँ पे बैठे हैं, ये जो कोर्टयार्ड है ये मेरा है, ये सारी चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं। बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। ईच लीफ, ईच ब्लेड ऑफ grass that grows is mine, can't you see? That means here the Akbar is saying in a very proud way that each leaf, each blade of grass that grows
इस माइन, कांट यू सी, दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी गार्डन है, जितना भी लीव्स हैं, जितनी भी ग्रास है, ये सारी चीज़ें मुझे बिलोंग करती, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? Now we can see that Akbar saw Sadhuji sitting in his courtyard. He started shouting on him and told him that why you are using my courtyard as your bed. Can't you see that everything belongs to me? Now see the next line. The Sadhu raised his neck just so, scratch his ear, twitch his nose. Here the meaning of twitch means सडन मूवमेंट, जब आप कोई सडन मूवमेंट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड ट्विच. सो यहाँ पे साधु जी अपने नेक को ऊपर करते हैं एंड देन वो अपने ईयर्स को स्क्रैच करते हैं एंड अपने नोज के पास कोई मूवमेंट करते हैं. स्ट्रेच लॉन्ग एंड लेजी आर्म एंड लेग्स, देन वो अपने लॉन्ग आर्म्स को, अपने पैरों को एंड अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं. क्रैक फर्स्ट हिज knuckles, then his toes. Here the meaning of knuckles means bones where fingers are joined. मीन जहाँ पे आपकी फिंगर्स ज्वाइन होती है, जो बोन जहाँ पे होती है, जहाँ से आपकी फिंगर ज्वाइंस होती हैं, सो उन्हें आप नकल्स कहते हैं. देन वो अपने हाथ के जो फिंगर्स होते हैं एंड जो पैर के जो फिंगर्स होते हैं उनको ऐसे क्रैक करते हैं. मीन जैसे आप जब योगा करते हो, जब आप करते हो ना, सो सिमिलरली वहाँ पे साधु जी भी ऐसा करते हैं. एंड देन आइज हाफ क्लोज ही स्पोक विथ ईज, एंड देन उनकी जो आइज है वो आधी खुली रहती हैं एंड आधी क्लोज रहती हैं. दैट मीन्स हियर वी कैन सी दैट साधु वॉज डूइंग हिज योगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साधु जी हैं वो यहाँ पे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. ईच ब्लेड ऑफ ग्रास so fresh and green is yours, you say. That means here the sadhu is telling, यहाँ पे जो साधु जी हैं वो बोल रहे हैं अकबर से that each blade of grass so fresh and green it's yours, you say. That means यहाँ पे जो भी ग्रास है, जो भी फ्रेशनेस है एयर में एंड जो ग्रीनरी है, वो सारी चीज़ें आपकी है. एंड देन टू टीज, दैट मीन ये सारी चीज़ें वो उनको बोलते हैं टीज करते हुए. टीज मीन्स टू लाफ, मीन्स जब आप किसी को चिढ़ाते हो देन आप ऐसी चीज़ें बोलते हो ना, सो उनको चिढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं उनको. देन सी द नेक्स्ट लाइन. deluded you have been, that means here the meaning of deluded means made to believe something that is not true. That means here Sadhu Ji is saying to Akbar that each blade of grass so fresh and green, जितने भी यहाँ पे freshness है, जो भी यहाँ पे grasses हैं, आप कह रहे हो ये सारी चीज़ें आपकी है, ये कैसे पॉसिबल है भी? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं है. यहाँ deluded का मतलब है to make something that is not true. That means here the Sadhu Ji is asking that how it is possible that everything belongs to you. It is not possible. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं, बिकॉज आपको भी पता है कि जो भी फ्रेशनेस है, जो ग्रास है, ट्रीज हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू नेचर. ओके, ये सारी चीज़ें नेचर को बिलोंग करती, किसी ने इसे खरीदा हुआ नहीं है, ये किसी को भी बिलोंग नहीं करती, ये सारी चीज़ें नेचर से हमें मिली हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. Akbar growled and growled some more. That means here growled means to make low sound in anger. That means जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, जो आप धीरे धीरे से जो बोलते हो, that is called growled. Akbar growled and growled some more. Get up you. You make me sore. That means here again Akbar is saying that now you are making me angry. Sore means angry, you can say. Now the Akbar is saying that now you are making me angry. बिकॉज यहाँ पे साधु जी उनको बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं. सो ये सारी चीज़ें सुन के अकबर बहुत गुस्से में आ जाते हैं. एंड देन ही इज सेइंग दैट गेट अप यू, आप यहाँ से उठो. नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री, आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो. द ग्रास, द ग्रीन, ऑल द लीव्स, द हाइव्स ऑफ ऑल द हनी बीज. दैट मीन्स ये जो ग्रास है, ये जो ग्रीनरी है, ये जो लीव्स हैं,
हाइव्स मीन्स जो हनी बीज के जो छत्ते होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड हाइव्स. सो ये सारी चीज़ें मेरी हैं. ईच मिनरेट, दैट मीन्स हियर, दैट मीन्स अ टॉल थिन टावर ऑन अ मॉस. सो यहाँ पे एक जो टॉल थिन टावर होता है, दैट इज कॉल्ड मॉस. इट इज द पिक्चर इज ऑन द बुक ऑल्सो ऑन पेज नंबर 126. So that is called moss. So here the Akbar is saying that each minaret in Fatehpur, my friend, all the walls from end to end. That means here the Akbar is saying that everything, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं फतेहपुर में, ये सारी चीज़ें मेरी हैं. जितनी भी वॉल्स हैं, ऑल द वॉल्स फ्रॉम एंड टू एंड, जितनी भी यहाँ पे वॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरी हैं. That means when Sadhuji told Akbar that everything does not belongs to you, Akbar became very angry and he said, Sadhu, to get up you. Now see the next line. Dome, windows, every door, stone on rock and sand or shore. That means here अकबर इज सेइंग दैट एवरीथिंग, दैट मीन्स डोम मीन्स एक राउंड रूफ होता है, राउंड रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग का जो आपने भी देखा होगा, जो कुछ बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो रूफ होते हैं वो राउंड होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डोम. डोम, विंडो एंड एवरी डोर, दैट मीन्स जितने भी डोम हैं, जितने भी विंडोज़ हैं, एवरी डोर, सारी चीज़ें मेरी हैं. स्टोन ऑन रॉक, जो स्टोन हैं, पत्थरें हैं, सब मेरी हैं. सैंड, जो भी सैंड है किनारे पे, मीन्स नदियों के पास जो सैंड होते हैं, वो सारी चीज़ें मेरी हैं. एवरी बिट ऑफ ग्रिट एंड ग्रीम, दैट मीन्स हियर ग्रिट मीन्स स्मॉल स्टोन, जो छोटे पत्थर होते हैं उनको आप बोलते हो ग्रिट. एंड ग्रीम मीन्स थिक लेयर ऑफ डर्ट, दैट मीन्स यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर्स हैं, वो सारे स्टोन्स हैं, वो सारी चीज़ें भी मेरी हैं. जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें मेरी हैं. इनफैक्ट जो बिल्डिंग पे जो डस्ट गिरे हुए हैं, जो ग्रीम हैं, वो सारी चीज़ें भी मेरी हैं. इट्स माइन, ऑल माइन, ओनली माइन. दैट मीन्स हियर अकबर इज सेइंग दैट ऑल द थिंग्स इज माइन, ये सिर्फ मेरी हैं. ऑल माइन, सारी चीज़ें मेरी हैं. एंड ओनली माइन, दैट मीन्स सिर्फ मेरी ही हैं. Now see the next line. He opened wide his half-shut eyes. Thus, Sadhu stroked his beard. That means here the meaning of stroke means to move your hand. अपने हाथों को जब आप मूव करते हो, दैट मीन्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें अकबर की सुन के साधु ओपेंड वाइड हिज हाफ शट आइज, दैट मीन्स पहले उन्होंने अपने आइज़ को आधा खुला हुआ था एंड थोड़ा सा बंद था, बट अभी उन्होंने अपनी आइज़ को पूरा खोल लिया. एंड नाउ ही इज़ जस्ट मूविंग हिज हैंड नियर हिज बियर्ड, दैट मीन्स वो अपनी दाढ़ियों के पास अपने हाथों को जस्ट मूव कर रहे हैं. पार्टेड हिज लिप्स एज इफ टू स्पीक, एंड देन वो ऐसे कोशिश करते हैं बोलते हुए कि मीन्स जैसे आप कोशिश करते हो बोलने के लिए कुछ. देन सी द नेक्स्ट लाइन. देन पर्श देम टाइट एज इफ ही feared. That here the meaning of pursed means brought lips together tightly into a small circle, especially to show doubt or disapproval. That means जब आपको कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ कोई चीज़ जो आप जिस चीज़ से आप एग्री नहीं करते, देन आप अपने मुंह को बहुत अजीब तरीके से बनाते हो, देन कुछ बोलने की कोशिश करते हो, देन फिर रुक जाते हो कुछ डर से. सो सिमिलरली यहाँ पे साधु जी भी वैसे ही कर रहे हैं. इन अ स्केयर्ड एंड लिटिल वॉइस, दैट मीन्स बहुत धीरे से एंड बहुत डरते हुए साधु जी बोलते हैं. वन क्वेश्चन ओनली सर, ही सेड. दैट मीन्स हियर द साधु जी इज सेइंग टू अकबर दैट आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, कैन आई से. हाउ मेनी ईयर्स हैव यू लिव्ड हियर. That means here the Sadhu ji is asking how many years have you lived here. That means आप यहाँ पे कब से यहाँ पे हो, आपने यहाँ पे कितने साल अपने स्पेंड किए हैं, कितने साल से आप यहाँ पे हो. Now see the next line. In Fatehpur, king born and bred. That means here Sadhu ji is saying that कि आपने कब यहाँ पे
फतेहपुर में आप एज अ किंग कब यहाँ पे आप पैदा हुए, एंड जो आपकी जो चाइल्डहुड है वो कैसी रही, मीन्स कहाँ पे आपने बर्थ आपका हुआ एंड कहाँ पे आपके जो चाइल्डहुड फेज थे वो कहाँ पे हुए सारे कुछ. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. हियर द मीनिंग ऑफ ब्रेड मीन्स चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड फेस होता है दैट इज. Now see the next line. In this palace, Akbar said. Now the Akbar is saying that in this palace I was born. That means इस palace में ही मेरा जन्म हुआ था. In this palace, Akbar said, I saw my very first moon. I saw very first morn. That means here the Akbar is saying that इसी पैलेस में मेरा जन्म हुआ था. I was born. I saw very first morn. That means here Akbar is saying that कि यही पैलेस में, इसी पैलेस में मेरा जन्म हुआ था एंड इसी पैलेस में मैंने सबसे पहले यहाँ की मॉर्निंग देखी थी. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग. Now see the next line. Who was king before you, Badshah? That means here साधु is asking that who was the king before you, Badshah? That आपके पहले यहाँ पे कौन king था. Now see the next line. Trumpets sounded in whose glory? Trumpets means here to announce something loudly. जब आप कोई चीज़ बहुत loudly announce करते हो, so that is called trumpets. Trumpets sounded in whose glory? Now see the next line. That means here Sadhu ji is asking few questions to Akbar. Oh Sadhu, you are so dumb. That means here Akbar is saying that oh Sadhu, you are so dumb. कि साधु जी आप कितने ज़्यादा डम्प हैं. Don't you know my अब्बा जी and before my father? That means here यहाँ पे जब साधु जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पहले यहाँ पे कौन किंग था, सो ये सारी चीज़ें सुन के अकबर जी बोलते हैं ओ साधु यू आर सो डम्प, आप कितने ज़्यादा डम्प हो. यू डोंट नो माई अब्बा जी, आप मेरे पापा को नहीं जानते हो. एंड बिफोर योर फादर सर हु लिव्ड हियर डू यू नो? एंड आपके पहले यहाँ पे कौन रहता, मीन्स आपके फादर के भी पहले यहाँ पे किसने राज किया. Okay, so now I will end this class till here because otherwise your video will be very long. In next class we will continue this poem. All of you please watch the whole video, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below the video, and please don't forget to write your name, class, which section for your attendance. Thank you students. Have a nice day.